Hello students, how are you? I hope you all are fine. So I am back with another video, and as you can see in the background, a man is pulling his boat and some footprints above it. There is a connection between the man and the footprints which we are going to read in this story. It's a very famous, I say, or well-known novel in the world of literature, that is Robinson Crusoe. It was written in 1719 and the story is taken from that novel. So let's start the story. I hope you all will like it. The main character of the story is Robinson Crusoe. As per the novel, he got stranded on an island for about 28 years when his ship got destroyed in a storm, and he stayed on that island for about 28 years. It's not mentioned in this particular chapter or book, but in the actual novel, it's mentioned. So now let's start. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprints of a man on the sand. I stood amazed, I listened, I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heels, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो उस आइलैंड पर 28 साल तक रहा था, तो उसे लगता था कि उस आइलैंड पर वो अकेला है। और एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था, उसकी बोट जो थी तूफान में टूट चुकी थी। तो जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसे वहां पर एक फुटप्रिंट दिखाई दिया, पैरों के निशान उसको वहां पे दिखाई दिए मिट्टी में। उसे देखकर वो काफी सरप्राइज्ड हो गया था और उसने ध्यान से देखा और सुना अपने आसपास कि कहीं उसे कोई दिखाई दे या कुछ सुनाई दे, लेकिन उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दिया, ना ही उसे कुछ सुनाई दिया। अब उसे लग रहा था कि यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ, तो ये फुटप्रिंट किसके हो सकते हैं, क्योंकि दिखने में तो ये पैर के ही निशान लग रहे हैं। ठीक है, जैसा मेरा पैर है उसी तरह के ये निशान है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निशान वहां आए कैसे, क्योंकि आइलैंड पर तो और कोई रहता नहीं है। काफी देर वहां खड़ा होकर सोचता रहा, लेकिन जितना वो सोच रहा था उतना ही और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. काफी देर वहां पर खड़े होकर सोचने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ, घर से यहाँ पर मतलब है उसकी गुफा की तरफ, उस गुफा को वो अपना महल कहता था, कैसल मतलब महल, तो वो उसकी तरफ वापस चल देता है और काफी घबराया हुआ होता है। वो हर 2-3 कदम के बाद पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि कहीं कोई उसको फॉलो तो नहीं कर रहा। उसे लग रहा था ये जो झाड़ियां हैं ये भी शायद कोई आदमी है इनके पीछे, या आदमी जैसा उसको लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में वो बात बैठ गई थी कि आइलैंड पर कोई ना कोई है। वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे कोई दौड़ रहा हो या उसे कोई पकड़ना चाह रहा हो। उसे याद नहीं कि उसने लैडर से यानी सीढ़ी से चढ़ के वो दरवाजे के अंदर गया गुफा के, या फिर एक होल है पत्थर के अंदर वहां से वो अंदर गया। वो इतना घबराया हुआ था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जितना जल्दी हो सका वो किसी चीज के पीछे छुपने के लिए भागा, जैसे कि
कोई जानवर भागता है। जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो सभी जानवर बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं छुपने के लिए, बचने के लिए। उसी तरह से वो भी भागा वहां से। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब उस पूरी रात रॉबिन्सन को नींद नहीं आती है। जितना वो उसके बारे में सोच रहा था उतना ज़्यादा वो और डर रहा था। उसे लगा कि जैसे वो तो आइलैंड पे फंसा हुआ था, लेकिन जो मेन लैंड था जहाँ पर बाकी लोग रहते थे, वहाँ से कोई मतलब खतरनाक लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो कि भटकते हुए इस आइलैंड पर आ गए हैं। और उस टाइम वो किनारे पर नहीं था। ये सोच के वो काफ़ी खुश था। अगर ऐसा होता और वो लोग मेरी बोट को देख लेते तो उन्हें समझ में आ जाता कि यहाँ पर कोई तो रहता है, और फिर वो उसे ढूंढकर उसे मार देते और खा लेते। ऐसी सब बातें उसके मन में आ रही थी। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। काफी दिनों तक वो अपनी गुफा में ही छुपा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate, but even now as I went forward I looked behind me frequently because I was very frightened. अब काफी दिनों तक डरने के बाद और अंदर रहने के बाद वो धीरे धीरे वापस कंफर्टेबल होने लगा था, नॉर्मल होने लगा। बाहर भी वो जा रहा था, इन्वेस्टिगेट का मतलब खोजबीन करने के लिए वो जा रहा था बाहर। लेकिन अभी भी वो बात उसके मन में कहीं ना कहीं थी, इसीलिए वो बार बार पीछे मुड़कर देखता भी रहता था कि कहीं उसके पीछे तो कोई नहीं आ रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. 2-3 दिन लगातार बाहर जाने के बाद और उसे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया, तो उसका डर जो था थोड़ा कम हुआ, वो थोड़ा बहादुर बना। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. अब उसने डिसाइड किया कि वो वापस से किनारे पर जाएगा और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से देखेगा, और अब की बार वो अपने पैरों के निशान से उसे कंपेयर करेगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही वो उस फुटप्रिंट के पास गया, उसे ध्यान से देख ही रहा था, उसे रियलाइज हुआ कि उसका जो वो जो फुटप्रिंट है वो उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत दिनों से बीच के उस हिस्से पर नहीं गया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. जब उसने वो पैर का निशान उसके साथ में अपना रखा, तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पैर के निशान से वो बड़ा है, वो जो फुटप्रिंट है वो उसके पैर से बड़ा है। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. उसका जो डर था वो अचानक से वापस आ जाता है। वो वापस अपनी गुफा में चला जाता है, ये सोचते हुए कि यहाँ पर कोई ना कोई है। ये आइलैंड जो है अब खाली नहीं है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई ना कोई और भी यहाँ पर आ चुका है। So I hope you liked the story. Now let's read the new words. Savages, wild people in primitive state. Mainland, large continuous extent of land. Wandered, go from place to place without a definite route. Bolder, more confident. Inhabited, occupied or dwelled in. So that's all for this video. Thank you for watching the video.